امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا عمر جس راستے سے گزر جائے اس راستے سے کبھی شیطان کا گزر نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میرا عمر جس راستے سے نکلے اس راستے سے شیطان کا گزر نہیں ہوگا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر نبوت کا دروازہ بند نہ ہوتا، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ میرا عمر ہوتا۔ سبحان اللہ۔ اب نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، اب کوئی نبی نہیں آ سکتا ہے، لیکن امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شان دیکھیے، عمر بن خطاب کی زندگی دیکھیے۔ ایک مرتبہ رات کے وقت میں امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے بھیس بدلا، بدلنے کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ ایک عورت اکیلی سفر کر رہی ہے، تنہا نکل رہی ہے۔ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بھیس بدل کے اس عورت کے پاس گئے، جانے کے بعد کہتے ہیں بہن رات میں تنہا سفر کرتے ہوئے تمہیں ڈر نہیں لگ رہا ہے؟ رات میں تم تنہا نکل رہی ہو، کیا تمہیں ڈر نہیں لگ رہا؟ اس عورت نے کہا تھا اے سوال کرنے والوں سنو، یا تو عمر کا انتقال ہو گیا ہے یا تم خود عمر ہو جو مجھ سے سوال کر رہے ہو، ورنہ عمر کے ہوتے ہوئے چلتی عورت کو کوئی چھیڑ دے کسی میں اتنی ہمت نہیں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عمر کو کوئی چھیڑ دے کسی میں اتنی ہمت نہیں ہے۔ یہ شان ہے امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ سیاست کرنے والوں امیر المومنین عمر بن خطاب کی زندگی کو دیکھیے، 23 لاکھ مربع میل پر حکومت کی ہے، آدھی دنیا پر بادشاہت کی ہے، کپڑوں پہ تو داغ تھے لیکن آپ کی خلافت میں کوئی داغ نہیں، آپ کی زندگی میں کوئی داغ نہیں تھا۔ سبحان اللہ۔ یہی امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ معاملہ کیا تھا؟ مدینے کے لوگ رات کے وقت میں سویا کرتے تھے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ رات کو جاگ کر کے لوگوں کی خیریت معلوم کیا کرتے تھے، لوگوں کے بارے میں لوگوں کے پاس جا کر کے ان کی خیریت پوچھتے تھے، کوئی بیمار تو نہیں ہے، کوئی پریشان حال تو نہیں ہے، کوئی مایوس تو نہیں ہے۔ گھروں کے اندر جاتے تو چولہے میں جھانک کے دیکھتے کس کے گھر میں چولہا جلا ہے، کس کے گھر میں نہیں جلا ہے۔ یہی امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ایک مرتبہ مدینہ شریف کے منافقوں نے آپس میں مشورہ کیا، یار عمر جب سے خلیفہ بنے ہیں ہم یہ سوچ رہے تھے اسلام مٹ جائے گا، اسلام کے نام نیوا نیست و نابود ہو جائیں گے، لیکن دن با دن اسلام ترقی کر رہا ہے، دن با دن اسلام بڑھ رہا ہے، کیا کیا جائے؟ کہا ایسا کرو اسلام کو مٹا دیا جائے۔ کہا کیسے مٹایا جائے گا؟ کہا کوئی ایک شخص قتل کرنے کا پلان بنا لے، وہ امیر المومنین عمر بن خطاب کا کام تمام کر دے۔ میٹنگ کی، ایک یہودی کھڑا ہوا، کھڑے ہونے کے بعد کہتا ہے اے لوگوں سنو، میں عمر کو قتل کروں گا۔ لوگوں نے اس کی طرف دیکھا، دیکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ تو امیر المومنین کو قتل کر دے گا؟ عمر کوئی بکری کا بچہ ہے، عمر کو قتل کرنا آسان نہیں ہے۔ اس لیے عمر وہ ہیں جن کی دہشت کا یہ عالم ہے کہ ایک گھاٹ پر شیر اور بکری پانی پیتے ہیں، لیکن شیر میں اتنی ہمت نہیں کہ وہ سر اٹھا کر کے بکری کی طرف دیکھ لے، تو عمر کو قتل کر دے گا؟ کیسے عمر کو قتل کرے گا؟ اس نے کہا اے لوگوں سنو، میرا منصوبہ یہ ہے کہ میں عمر کے شب و روز پر نظر رکھوں گا، ظہر ان کے پیچھے پڑھوں گا، عصر ان کے پیچھے پڑھوں گا، مغرب ان کے پیچھے پڑھوں گا، عشاء ان کے پیچھے پڑھوں گا، جب مجھے وقت مل جائے گا میں ان کا کام تمام کر دوں گا۔ لوگوں نے کہا تیرا پلان تو صحیح ہے، تو نے منصوبہ تو صحیح بتایا ہے، اس طریقے سے عمر کو قتل کرنا بڑا آسان ہو جائے گا۔ اس نے کہا قتل تو کر دوں گا لیکن جتنا میں انعام کہوں اتنا انعام دیا جائے گا۔ لوگوں نے کہا ہاں تجھے منہ مانگا انعام دیا جائے گا۔ امیر المومنین عمر بن خطاب کو قتل کرنے کے ارادے سے گھر سے باہر نکلتا ہے،
तलवार को लेता है, सर पे टोपी लगाता है, चेहरे पर दाढ़ी रख लेता है, इस्लामी लिबास पहन लेता है, इस्लामी रंग में रंग जाता है, अमीरुल मोमिनीन के पास जाता है, जोहर हजरत उमर के पीछे पड़ता है, असर हजरत उमर के पीछे पड़ता है, मगरिब हजरत उमर के पीछे पड़ता है, इशा हजरत उमर के पीछे पड़ता है, फजर हजरत उमर के पीछे पड़ता है, शब रोज पर नजर रखता है। उमर दिन में क्या करते हैं, रात में कहां जाते हैं, शब रोज पर नजर रखता है, घुल मिल जाता है। अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह तआला अन्हु का मशगला था कि आप दोपहर का खाना खाने के बाद खजूर के बाग में पहुंच जाया करते थे, वहीं आप कैलूला किया करते थे। दोपहर का खाना खाने के बाद कुछ देर तक आराम करने को कैलूला कहते हैं, और यह कैलूला करना मेरे सरकार की प्यारी प्यारी सुन्नत है। अब वो मुनाफिक दिल के अंदर ख्याल करता है कि अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रोजाना दोपहर का खाना खाते हैं, खाने के बाद खजूर के बाग में चले जाते आराम करने के लिए। एक दिन इसने सोचा लाओ इनके पहुंचने से पहले मैं बाग में पहुंच जाऊं। बाग में जाता है, खजूर के दरख्त के ऊपर चढ़ जाता है, पेड़ पर बैठ जाता है। अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब ने दोपहर का खाना खाया, खाना खाने के बाद खजूर के बाग में जाते हैं, हाथ का तकिया सुन्नत के मुताबिक लगा करके महबे इस्तराहत हो जाते हैं। जब आप सो गए, अब वो मुनाफिक दरख्त के ऊपर चढ़ा बैठा था, उसने चारों तरफ देखा, अतराफो जवानी में देखता है, दूर दूर तक कुछ नजर नहीं आता है। उसने कहा मौका अच्छा है, खजूर के पेड़ के नीचे उतरता है, पेड़ से नीचे आता है, आने के बाद चारों तरफ फिर देखता है, कोई दिखाई नहीं देता है, कोई नजर नहीं आता है। अब दिल के अंदर कहता उमर आज मैं तुम्हारा काम तमाम कर दूंगा, मुझे इतना इनाम इकराम दिया जाएगा, मैं जितना मुंह से बोलूंगा उससे ज्यादा मुझे इनाम दिया जाएगा। तलवार को नियाम से निकालता है, निकालने के बाद कत्ल करने के इरादे से करीब गया, क्या देखता है दूर दूर तक अभी कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन अब अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब का तवाफ जंगल का शेरे बबर कर रहा है, जंगल का शेरे बबर हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब का तवाफ कर रहा है। सिर्फ तवाफ ही नहीं, जब वो कदमों के पास जाता है, कदमों को चूम लेता है, कदमों को बोसा भी दे लेता है। अब वो मुनाफिक शशोपंज में पड़ा हुआ है, अभी मैंने दूर दूर तक देखा कुछ भी नजर नहीं आया था, लेकिन अब अचानक इनका तवाफ जंगल का शेरे बबर कर रहा है। और सिर्फ तवाफ ही नहीं, इनके कदमों को भी चूमता है, कदमों को बोसा भी दे लेता है। अब वो यहूदी तलवार को फेंकता है, अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब के कदमों पर गिर जाता है। गिरने के बाद कलमा पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब बेदार हुए पूछते हैं ऐ शख्स ये बता तूने मुझे कलमा क्यों पढ़ लिया है, देख करके मुझे कलमा क्यों पढ़ा है, इससे पहले तूने नमाजें मेरे पीछे पढ़ी है, असर तू पढ़ता था, मगरिब तूने पढ़ी है, ईशा तूने पढ़ी है, फजर तूने पढ़ी है, जोहर तूने पढ़ी है, लेकिन कलमा आज तूने क्यों पढ़ लिया है। इतना पूछा, इतना कहा, कहने के बाद वो यहूदी कहता हुजूर वाला मैं नमाजें तो पढ़ता था, लेकिन मैं आपको कत्ल करने के इरादे से आया था। मैंने जो ही तलवार को नियाम से निकाला, मैंने देखा कि आपका तवाफ जंगल का शेरे बबर कर रहा है, और तवाफ ही नहीं, जब आपके कदमों के पास पहुंचता है, आपके कदमों को चूम भी लेता है, कदमों को बोसा भी दे लेता है। हुजूर मैंने कलमा इसलिए पढ़ लिया है कि आपकी शान का यह आलम है कि आपका तवाफ जंगल का शेर बबर कर रहा है। ए अमीरुल मोमिनीन कलमा इसलिए पढ़ लिया है, आपका परवरदिगार आपकी हिफाजत कर रहा है, दुनिया की कोई भी ताकत आपको नेस्तो नाबूद नहीं कर सकती है। हुजूर बाला दुनिया की कोई भी ताकत आपको कत्ल नहीं कर सकती है। सुभान अल्लाह। यही अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह तआला अन्हु है। शान देखिए अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब की। आप जब खलीफा बने, खलीफा बनने के बाद एक मर्तबा आप सफर कर रहे थे, मदीना शरीफ की गलियों में घूम रहे थे, लोगों को देख रहे थे, कोई परेशान तो नहीं है, कोई बीमार तो नहीं है, खैरियत मालूम करते हुए चले जा रहे। क्या देखते हैं कि चंद बच्चे एक जगह पर खेल रहे हैं। वो बच्चे आपस में कहते हैं कि फला मोहल्ले में एक नाबीना रहता है जिसने कई रोज से कुछ खाया नहीं, उसका लिबास गंदा है, कोई धुलने वाला नहीं, बिस्तर मैला है, कोई धुलने वाला नहीं। अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब ने जब इतना सुना, सुनने के बाद आपने पता पूछा, बच्चों ने पता बताया। अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस नाबीना के घर गए,
जाने के बाद क्या देखते हैं, उसका बिस्तर गंदा है, बिस्तर धुल दिया, लिबास गंदा था, लिबास धुल दिया, भूखा था, उसे खाना खिलाया, खाना खिलाने के बाद जब चलने लगते हैं, उस नाबीना ने अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब का हाथ पकड़ा। पकड़ने के बाद वो नाबीना कहता है, ये बताओ हर दूसरे दिन जो मेरी खिदमत करने के लिए आया करता था वो नहीं आया है, मेरा लिबास भी धुल देता था, बिस्तर भी धुल देता था, हर दूसरे दिन मुझे खाना खिलाने के लिए आया करता था, क्या तुम्हें उसके नाम का पता है? क्या तुम उसको जानते हो? वो कौन आया करता था? अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब ने कहा, मैं उनका नाम तो नहीं जानता हूं, अलबत्ता मुझे इतना मालूम है कि तुझ जैसे कमजोरों की खिदमत करना ये अबू बकर सिद्दीक की आदत में दाखिल था, इसलिए मुझे लग रहा है तेरी खिदमत करने के लिए अबू बकर सिद्दीक ही आया करते होंगे। उस नाबीना ने कहा था, तुमने सच कहा है, जब वो हमारे घर पे आया करते थे उनके सदाकत की खुशबू हमारे घर में आ जाया करती थी, उनके सदाकत की बू हमारे घर में आ जाया करती थी। उस नाबीना ने कहा था, तुम्हारा नाम क्या है? उमर बिन खत्ताब ने फरमाया, मेरा नाम उमर है, अब मैं खलीफा बन गया हूं। उस नाबीना ने हाथ पकड़ के कहा था, ए उमर, तुम पहली मर्तबा आए हो, तुमने अपना नाम भी बता दिया है, अपना पता भी बता दिया है, और वो अबू बकर सिद्दीक थे, 4.5 साल तक उन्होंने हमारी खिदमत की है, मैं उनसे नाम पूछता था, उन्होंने मुझे 4.5 साल में भी अपना नाम नहीं बताया था, लेकिन तुम पहली मर्तबा आए हो, तुमने मुझे अपना नाम भी बता दिया, पता भी बता दिया है। अल्लाहु अकबर कबीरा। इस्लामी भाइयों, ये अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु है, इसलिए इस्लामी भाइयों, सरकार के नाइबीन से मोहब्बत करो, सरकार के नाइबीन से सच्चा प्यार करो, इसलिए सरकार के नाइबीन से अगर प्यार करोगे इंशाअल्लाह दुनिया में भी शाद रहोगे, मरने के बाद कब्र में भी आबाद हो जाओगे। शान देखो अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु की। एक मर्तबा उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा रात के वक्त में आराम कर रही हैं, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी लेटे हुए हैं। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका अफीफात तय्यबात ताहिरा, आपकी नजर अचानक आसमान के तारों पर पड़ती है। जब आसमान के तारों पर आपकी नजर पड़ी तो अर्ज करती हैं, या रसूल अल्लाह, ऐ मेरे सरताज, क्या किसी की नेकियां आसमान के तारों के बराबर हैं? आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हां ऐ आयशा, वो उमर हैं जिनकी नेकियां आसमान के तारों के बराबर हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आकाए करीम फरमाते हैं, ऐ आयशा, वो उमर हैं जिनकी नेकियां आसमान के तारों के बराबर हैं। इतना कहा, कहने के बाद हजरत आयशा सिद्दीका कहती, या रसूल अल्लाह, मेरे वालिद मोहतरम की नेकियां किधर गईं? आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ आयशा, आसमान में जितने तारे हैं इतनी सारी नेकियां उमर बिन खत्ताब की हैं, और जितने तारे हैं आसमान में इतनी बड़ी एक नेकी अबू बकर सिद्दीक की है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतनी बड़ी एक नेकी अबू बकर सिद्दीक की है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जभी तो फरमाया, असहाबी कन नुजूम, मेरे सारे के सारे सहाबा आसमान के तारों की तरह हैं। बेअय्यहिम इक्तदैतुम व इह्तदैतुम, तुम इनमें से किसी एक की भी पैरवी करोगे तो हिदायत पा जाओगे। इसलिए इस्लामी भाइयों, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाइबीन से मोहब्बत करो, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा से सच्चा प्यार करो। उमर बिन खत्ताब को देख लो, कैसी हुकूमत की है, हुकूमत के कामों को किस तरीके से अंजाम दिया है। आज अपने तो अपने बेगाने भी जब अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब की तारीख को पढ़ते हैं वो कहने पर मजबूर हो जाते हैं कि अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब ने जिस तरीके से हुकूमत की है, आज उस तरीके से कोई हुकूमत नहीं कर सकता है। कपड़ों पर लिबास होते थे, कपड़ों पर पैबंद लगे होते थे, पैबंद लगे कपड़ों को पहनते थे। मदीने के लोग रातों को सोया करते थे, हजरत उमर बिन खत्ताब रातों को जाग करके लोगों की खैरियत मालूम किया करते थे। मालूम आलम क्या था? अपनी पुश्त पर, अपनी पीठ पर अनाज का कट्टा, अनाज की बोरी लाद करके गरीबों के घर पहुंचाते थे। अल्लाह अकबर। ऐ मौला, हमारे दिल में
अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब जैसा हौसला अता फरमा दे। अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब की मौला मेरे दिल में सच्ची मोहब्बत अता फरमा दे। अपनी पुश्त पर कट्टा लाद के लोगों के घरों तक पहुंचाते थे, लोगों में बांटा किया करते थे, लोगों में तकसीम किया करते थे। इसलिए ऐ इस्लाम के सिपाहियों, इस्लाम के मानने वालों, उमर बिन खत्ताब से सच्ची मोहब्बत कर लो, सरकार के नाइबीन का प्यार अपने दिल में बसा लो। इंशाअल्लाह दुनिया में भी शाद रहोगे, मरने के बाद कब्र में भी आबाद हो जाओगे।